शुरू करें क्या? हाँ जी, हाँ जी। सर पहले आपका वेलकम था। एड्रेस करते हुए आप बैठ के कर दीजिए। President of the Gujarat Journalist Union, Mr. B.R. Prajapati, our guest members of the Press Council of India from Delhi, Mr. Jayshankar Gupta, Mr. L.G. Bhaltiya, Sri Timshu Pramanik, Prasanna Kumar Mohanty, and Kavin Mehdi. I welcome all of you from bottom of my heart at Gujarat. We are guest of the state as well as guest of the Gujarat Journalist Union Ahmedabad. I think you must have visited some places like SOU and Gandhi Ashram and all these things. Ahmedabad is the first heritage city of the India, and there are numbers of monuments and numbers of things to see over here. Sir, ours is a very old organization. Gujarat Journalist Union is 63 years old organization. We are the only trade union in state. And we are working for the welfare of the journalists since 63 years. 66 years. 63. We have numbers of members, say about 400 active members in Gujarat from various districts and Ahmedabad also. My president, Mr. B.R. Prajapati, he was the president of the Indian Journalist Union for 3 years. He passed, and myself was the treasurer in IDU. Sir, we have some problem with the state as well as with the central. We are requesting more than 10 times to our chief minister, our governor, our prime minister of India for pension of the journalists. We also request for the medical services. We also request for the housing arrangement. But state or central is not giving any response to us. So, through PCI, we are requested to convey our request to the Prime Minister of India or the Ministry of Indian Broadcasting and Information. Ours is an organization that we have a lot of senior members. For accreditation of card, before 2 years, they stopped to issue card and to renew the card. You must have worked with the Commission of Information and Broadcasting in Gandhinagar. They also stopped to give advertisement to the tabloid and the newspaper. See, normally for the small newspaper people, income is from the state. जो जाहिर खबर उनके पास एडवर्टाइजमेंट आती है और उनसे कुछ काटा जिस हिसाब से उनको मिलता है. But sometimes I don't know what is the problem with the state and समय नहीं लोगों को भी फ्लाइट पकड़ने. दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारी सब कमेटी यहाँ है वो लिमिटेड है, सिर्फ एक्रेडिटेशन पॉलिसी को लेकर के, एक्रेडिटेशन कमेटी को लेकर के, जो जर्नलिस्टों को एक्रेडिटेशन मिल रहा है उसको लेकर के. बाकी बहुत सारे इशूज आपके हो सकते हैं, विज्ञापन के भी हो सकते हैं, फैसिलिटीज की भी हो सकती है, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि उसको इसलिए मैं चाहूँगा आपसे कि बहुत ही कंसाइज अगर एक्रेडिटेशन पॉलिसी में एक्रेडिटेशन की जो कमेटी बन रही है उसमें या जर्नलिस्टों को जो एक्रेडिटेशन मिल रहा है उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आप बात करिए, लेकिन उसमें करेंगे तो फिर वो घंटों लगेगा. we want to convey our message to the center of authority through you only. That is the it's okay now. I request my president, Mr. Prajapati, to present a bouquet and present one shawl.
कुमार मोहंती जी हैं उड़ीसा जर्नलिस्ट उड़ीसा के भी हमारे हैं सब। हाँ हाँ सब कुछ हमारा सबका साथ अच्छा है, कोई यूनियन फीलिंग भी नहीं उड़ीसा नहीं। irrespective all unions, we are one. मानिक Mr. Manik, please come. So present is bouquet and short to Mr. L.C. Bhartiya. मानिक है कलकत्ता प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे कांस्टिट्यूशन में Then I request Mr. Kingshu Pramanik to accept the हो bouquet. गया इनका एलसी भारती बैठा। ऐसी भाटिया जी हैं जयपुर से हैं राजस्थान से। ये जना जुड़े अरे ये जना जुड़े पहले हमको फ्लाइट का टाइम भी हो गया। On behalf of Press Council Subcommittee, I thank you all. You have given us a very warm welcome. We are thankful to all of you, कोहली जी, हमको बताया था आपके बारे में। और actually we all belong to different organizations, different union. We have no union feeling anywhere. We are all so far as the problems of journalists are concerned, we are all united. You have rightly pointed out 2-3 points. Our chairman, senior leader is there. We'll certainly incorporate in our recommendation about your grievances. One is that about the senior journalist. The provision there, we have already cross-checked your accreditation policy yesterday. Provision is there to provide accreditation to the senior journalist. Either they can avail deluxe accreditation or ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी भी किया था उसमें आपका जो रिन्यूअल नहीं किया गया उसको यू कैन कंसल्ट विद द गवर्नमेंट एंड आई थिंक प्रोविजन इज देयर एंड रिगार्डिंग अदर और जो आपने बोला जो एडिटर जो रिकमेंड कर रहे हैं सिर्फ उनको एक्टिवेशन किया जा रहा है दैट इज द प्रोविजन एवरीवेयर इफ एडिटर विल नॉट रिकमेंड यू विल नॉट गेट accreditation if you are self run if you are running your organization you can recommend yourself you can apply for yourself but if you are working in a bigger organization that is the discipline that only the on recommendation of the editor accreditation can be granted can be taken into consideration that is the provision then regarding other part we will tell and now please Jaiswalji you will give your reply. प्रजापति जी मेहता जी अहमदाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट अभी सूचना विभाग के सहायक संपादक सहायक सूचना अमित आचार्य जी बैठे सूचना विभाग से आप बता दें नाम आपको विनेश पटेल सर अहमदाबाद ओरिजिनल सीनियर सेक्रेटरी नाम है एक तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सब कमेटी एक्टिवेशन को लेकर के हमारे विनोद कोहली जी इसके कन्वीनर हैं लेकिन उनकी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो जाने से ये जिम्मेदारी उनकी हो गई और वो नहीं आ सके तो आप सबका हम लोग बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और मोटिव हमारा यही है कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उसको एक्टिवेशन डिनाई नहीं होना चाहिए और जो फर्जी जर्नलिस्ट है उसको एक्टिवेशन मिलना नहीं चाहिए मोटिव हम लोग का मेन ये है और हम पूरे देश भर में जहाँ जहाँ संभव हो सका है बहुत सारे राज्यों में हम जा करके देख करके आए चंडीगढ़ है हरियाणा है पंजाब है ईस्ट में कलकत्ता है नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी और शिलांग है फिर चेन्नई है साउथ में और ये वेस्ट में हम लोग गुजरात है तो कल काफ़ी अच्छी बातें हुई सूचना विभाग की तरफ से भी हुई
और इसमें जो दो चीज़ें जो दिखी हम लोग को, एक तो एक्विजिशन समितियाँ जो हैं बनती हैं, उसमें जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नाम्स हैं, तो उसको पूरी तरह से फॉलो शायद किसी एक राज्य में भी नहीं है पूरी तरह से। कहीं किसी चीज़ का फॉलो है, कहीं किसी चीज़ का नहीं है। तो यहाँ पर भी जैसे है कि एक तो PCI का पेपर होना चाहिए इसमें, तो वो नहीं था, तो उसको हमने पॉइंट आउट किया और दे आर एग्री टू कंपाइल। और सेकेंड थिंग है कि जर्नलिस्ट यूनियन और एसोसिएशंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए एक्शन कमेटी में। ये बात भी हम कि इन्होंने भी कहा अगर नाम से होगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका मैकेनिज्म है, चूँकि बहुत सारी जब मालूम होगा कि एक्शन कमेटी में जर्नलिस्ट यूनियन और एसोसिएशन को भी ले रहे हैं तो बहुत सारे क्लेमेंट्स आ जाएंगे, तो उसका हमने कहा कि एक मैकेनिज्म बन सकता है। उसको आप देख सकते हैं कि 5 साल या 8 साल से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हर साल उसका चुनाव होना चाहिए, हर साल उसका ऑडिट होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हर साल की उनकी अपनी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जो लोग उसको फुलफिल करते हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये हमारे रिकमेंडेशन में आने वाला है, जाएगा। तो जो कंपोजिशन है, जैसे हम प्रेस काउंसिल का है कि 9 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए और 21 अधिकतम मेंबर होना चाहिए, तो उसका भी है। हो सकता है कि अब चूँकि हमारा भी जो पॉलिसी है या जो नाम्स बनाए गए हैं ये 2011 के हैं, 13 साल पुराने, और यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 2001 की है, वो भी काफ़ी पुरानी। तो उसमें जो भी ज़रूरी है वो सब चेंजेस करके वो नया हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से नए नाम्स बनेंगे, तब फिर वो उसको कैसे उसका अमल इंश्योर किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक एक्विजिशन की बात, जैसे एक चीज़ है कि फ्रीलांसर्स को हर जगह मिलता है। जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, जैसे मान लीजिए कोई रिटायर कर गया या किसी अखबार में काम कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ दी है या नौकरी से हटा दिया गया है, तो वो अपना जर्नलिज्म कर रहा है। तो जर्नलिज्म कर रहा है तो उसके लिए भी चाहिए कि एक्विजिशन उसको मिले ताकि वो जाके अपने रिपोर्टिंग का काम कर सके, ऑफिस में या उसमें पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा, जैसे आपने कहा नेताजी ने कहा था, वो उन्हीं को मिलता है एक्विजिशन जो संपादक लिख के देता है। तो संपादक तो जाहिर सी बात है कि वही तय करेगा कि हमारे अखबार से रिपोर्टिंग कौन करेगा, सरकार को कौन कवर करेगा, क्राइम कौन करेगा, मेट्रो कौन करेगा, नगर निगम कौन कवर करेगा। तो संपादक ही तय करेगा, हम और आप नहीं कर सकते हैं या गवर्नमेंट भी नहीं तय कर सकती है। तो ये तो उन्हीं का है, वो अपना लिख करके देंगे किसी। लेकिन फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो होगा वो अपने आधार से वो अपना अप्लाई कर सकता होगा, अगर जहाँ मान्यता होगी, जहाँ उनको भी एक्शन मिलने की बात होगी। और दूसरा ये कि जो वेटरन जर्नलिस्ट के नाम से 60 साल के ऊपर का इन्होंने बनाया हुआ है, तो वो है, तो उसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि 60 ईयर्स के ऊपर के जर्नलिस्ट वो है, उनको आप एक्शन देंगे। तो उसमें भी जो मान लीजिए रिटायर हो गए हैं या कहीं कुछ और कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो अगर 60 ईयर से ऊपर हैं तो उनके लिए एक तरह से हम लोग की तो सिफारिश होगी कि लाइफ लॉन्ग या जब भी उनको एक दिया जाए, हर साल उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं कि मतलब आप एक्टिव हैं कि नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ तो मान लीजिए ये भी पोस्ट मास्टर हो जाते हैं, तो उसके लिए मतलब एक नियम वो भी रहना चाहिए। तो इस तरह की हम लोग की सोच है ये। अब उसके हिसाब से जैसा भी बन पड़ेगा, जो हमारी जो रजूआत है वो आप क्या मदद कर सकते हैं, पंचायत देखिए आप एक रिलेशनशिप है। नहीं, देखिए हमारी जो सब कमेटी है वो एक्विजिशन पॉलिसीज को लेकर के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नाम्स बनाए हैं। उन नाम्स पे कहाँ अमल हो रहा है, कहाँ अमल नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर करने के लिए, उसका पहले पता करने के लिए तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। उसी क्रम में हम गुजरात में भी आए हैं। गुजरात में हम लोग की बैठक हुई है, सूचना विभाग के आलाप सभी के साथ हुई है, जो एक्विजिशन कमेटी है उसके साथ हुई है, जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग हुई, कुछ और भी जर्नलिस्ट लिए थे। उन लोगों से सबसे बातचीत करके कि क्या एक्विजिशन कमेटी का जो बनता है उसके निर्माण में क्या क्या बेस है, क्या किस आधार पर बनता है और किस आधार पर दिए जाते हैं एक्विजिशन, तो इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। और ये रिपोर्ट हम लोग बना करके प्रेस काउंसिल करेंगे, वो अपना जैसे नाम तैयार करेगा जो आप लोगों ने दिया है। गुजरात जर्नलिस्ट यूनियन ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को भी हम लोग देखेंगे, उन सुझावों को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और राज्य सरकार को भी उससे अवगत कराएंगे। उस पर अगर हो सकता है तो कुछ समझ में। थैंक यू। गुजरात का कैसा रहा आज आपकी जो मुलाकात है, कैसी रही? बहुत अच्छी मुलाकातें रही, चाहे वो सूचना विभाग के
अफसरों के साथ रही है, जर्नलिस्टों के साथ रही और बहुत जो गुजरात को आतिथ्य के मामले में बहुत ही मशहूर है, तो उस आतिथ्य के हिसाब से उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब कि कुछ कमी रह गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग पूरी टीम हमारी बहुत ही सराहना करती है उसका, और आप सब लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनका सर पत्रकार गुजरात जनरल यूनियन ने मुलाकात की है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जो डेलीगेशन आया हुआ है, तो उनके अध्यक्ष जयशंकर गुप्ता जी और सभी माननीय साथियों ने हमारी जो सुझाव थे प्रेस काउंसिल के लिए और जो एक्रीडेशन कमेटी के लिए, उन्होंने ध्यान से सुने और हमको ऐसा दिलासा दिया है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो अपना नैतिक तौर से जो भी बनता है वो सब कार्य करेगा। तो सभी जर्नलिस्टों को इसके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और सलाह मशवरा करें।